बादलों से सलाम लेती हूँ, वक्त का हाथ थाम लेती हूँ। सारा समा खूबसूरत हो जाता है, सारा समा खूबसूरत हो जाता है जब उस ईश्वर अल्लाह प्रभु का नाम लेती हूँ। I am Mafri. You all know, right? Welcome you all on behalf of JEC publication and this event, What Your Heart Says. I hope we all will make this event wonderful and very amazing and memorable. Right, Kamya? Definitely, Anamdeep. Yeah, इससे पहले काम्या अपने बारे में बताएं, मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूँ कि बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और हर कॉलर से बिल्कुल नहीं लगती हूँ। आप उसे इग्नोर कर सकते हैं because there is a kid inside me. That kid is very curious to know different things and this writing thing also is something very new for me. So every time I tend towards learning new things and trying new things. तो बस उसी उसी तलाश में, उसी नई चीज की तलाश में आज मैं आप सबके सामने हूँ और मैं चाहूंगी कि आप काम्या अपने बारे में थोड़ा बताएं। Okay, guys. My name is Kamya Kakkar, and first of all, I welcome you all to this open mic. I'm your co-host for today and motivator, as by my voice, if you can feel it. And I'm a dancer, writer, and trying to winning in my life daily challenges. And I have a one quote for everyone, for all of you. Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of a love that I want to share you with all. I hope my love would send you to everyone. Yes, definitely. Yeah, I can feel it. Okay, fine. So जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इंडियंस स्पेशली हम किसी भी स्पेशल काम को स्टार्ट करने से पहले उसे एक ईश्वर का नाम लेते हैं, जिसे भी हम मानते हैं, जिसे भी हम फॉलो करते हैं। और तो उसी के लिए ना I'm gonna present my screen with you all. तो आप उस प्रभु को, उस एक शक्ति को याद करें ताकि हम अपनी इस इवेंट की शुरुआत बहुत ही शुभ चीज से कर सकें। Let's take the lamp lighting. Right, because darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. And hate cannot drive out hate. Only love can do that. So Wow. before sharing that love which is there in our hearts in the form of poetry and maybe short story and maybe something else, let's take the name of one supreme power. And for that, I'm gonna share my screen. Please, you can put your hand together if possible. That'll be great if you will do so. I hope you all can see my screen. Can you please say yes or no? Yes, yes. Yes. Okay. And here we go. So I hope you liked it, the digital way of lamp lighting, because it's really important to start something with a lot of positivity, especially when we really want to share the happiness, Yes, am I audible, everyone? Yes. Yes, yes, Anam. Right. Yes, you're audible. Okay. Okay, तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमने शुरुआत तो कर ली, right, Kamya? And here, the people who are here, I would love to thank them. Thank you so much, all of you, for joining us. And I'm sure that this is going to be memorable. Okay, but before moving ahead, Kamya, one Yes, thing which Anam. is important
will you do it for me, please? One very important Definitely. thing is there कि ये यंग जनरेशन है ना हमारी, चैतन्य है, फाउंडर जी, ऑर्गेनाइजर आख्या है, अखिल है, coordinator, you are there, the participant, most of the participants who are maybe under 20 और near, बहुत सारे ऐसे हैं they are 40 but दिल से हमेशा 16 साल के हैं भाई, उनको तो नजर ही ना लग जाए मेरी तो है ना, तो तो जवाब ये जो है। स्पिरिट है ना, राइट राइट, तो उनको एक थैंक यू तो बनता है, राइट काम्या? Definitely, for sure. Okay, so before moving ahead, we extend our warm gratitude to the organizer, Ms. Akhya Pandey, founder of JEC Publication, Mr. Chaitanya, our coordinator, Mr. Akhil, and my dear co-host, Kamya. Thank you. Ma'am. Okay, so would you like to call the first participant, Kamya? Definitely, Anandam. So Kunal is present there. Kunal ji, are you here with us? I guess Anandam Kunal is not here. So Okay, then Sandeshi ma'am. मेरे पापा का हाँ और माँ का ख्याल रहता है। क्या बात है, बहुत ही तो खूबसूरती से कह दिया आपने ये बात। जी, ये रजनी मैम के लिए था, काफी सुंदर लगा मैम। क्या थैंक बात यू है। सो मच मनोरंजन, मुझे इतना अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। वैसे काम्या, शुक्रिया। मुझे पहले ही लग रहा था कि दिस मैन हैज गॉट सम टैलेंट एक्स्ट्रा वाला ना, नाम में ही मनोरंजन है और देख के आते ही उन्होंने ही कर दिया। मेरे को तो उनकी स्माइल देखते ही लगा था कुछ ना कुछ तो खूब है उनमें। Right, right. Okay, now let's move ahead, and the next participant is Sai. So Sai, would you like to present your words again in front of all of us? उस समय शायद कुछ लोग नहीं भी सुन पाए होंगे, कुछ नहीं भी थे। Yes, ma'am. Can you please? Yeah. तो हमारा होनहार बालक साई, Yeah. Yes, इस बार तो भाई साई, you don't have to be shy, हाँ, just show up yourself. Yeah, that's good, that's great. I recently completed my 12th standard. Man, I recently started writing poems and all. Yes, I got this chance from my writing skills only. I hope all the participants in this meet are writers. And shall I start, ma'am? हाँ, sure, we can hear you well. बस चेहरा नहीं देख पा रहे हम आपका, डीपी देख पा रहे हैं। No. I'm going to say about to come back in life. So when mostly the depressed ones feel that they can't rebound. By the way, the fact is they can come back gracefully if they have motivation. The most important ingredient is to be honest to yourself. I strongly believe that self-promises can make a strong comeback. And comeback it never depends on your hope and thoughts. It's just by your actions you do great. And you need to follow some procedures to be succeed in your life, like taking guidelines from seniors. And you should not feel shy to ask our juniors about something, because it's not about what to do, it's just about how to do and how you finish it great. And thinking about the past and trying to do things is your and trying all the sorrowful pics sharing on social media is just for their benefit. And if you need any help, just they show some sadness towards you. That's it. You should come back in your own way. It's just your duty to be grateful. And there's no more words to say. And thanks a lot for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Allah. सही, आपकी लाइफ टीचिंग्स बहुत ही अच्छी है कि डोंट थिंक अबाउट द पास्ट एंड व्हाट यू स्ट्रांगली बिलीव इन इज एक्चुअली अमेजिंग. जस्ट कीप ऑन गोइंग इन स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस wherever you go, Sai. Thank you, ma'am. How was your Right. training? You have just did you standard? Am I right? Thank you for your golden words, actually. Thank you very much, ma'am. Manoranjan ji, please mute your mic. It's my humble request from you. Thank you so much. Adi. Yes, Kamya, over to you. So
Sai was over. So our next participant is Karan Sharma. Is he here? Karan Yes. Sharma, known as Kafire Nazm. Nazm. Yeah, that's quite an interesting name. Kafir Nazm. Do you know, Kamya, No- what kafir not- is? Not, it's Nazm, not Nazm. It's Nazm. You can Nazm. call it both. In the both way you can pronounce it. Nazm is दिल से कहा Something शायद different. वही काफी था हमारे लिए. okay, and yeah, one more thing. There is just some time ये limit. बताएंगे means- करण आपको किस चीज ने काफिर बनने पे मजबूर कर दिया? अच्छे भले इंसान. No, हाँ? no. Actually, in my childhood, मेरे सबसे फेवरेट थे भगत सिंह. एंड भगत सिंह की जब मैंने पोएम पढ़ी थी कि मैं शायद वो काफी नहीं उन्होंने वर्ड यूज किया था. मैं नास्तिक क्यों हूँ. सो द पोएम हैज वेरी ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन मी. एंड फिर मैंने ही अपने आप को काफी भी कर लिया. एंड मुझे उतना बिलीव भी नहीं है. सो आई एम गुड एज ए So, काफी. ma'am, I hope you are happy in your life. Just Yes, I am very happy in my life. so good to know, Karan. Okay, and there is one more thing. There is some time limit. Means we can perform only one poem. I have three You can for go this with. event. Okay, so go ahead. If you allow. Okay. What So- say everyone? Hearts for Karan in the chat box if you all allow him. Because Karan, it's still you can start and अभी hearts आएंगे तो आप बाकी भी सुना दीजिएगा. Okay? No, अगर एक है तो फिर मैं Akansha उसमें Rai. फिर- yeah. Okay. Where is your friend Karan? Is she there? Yes. Some of. Okay, सबका ढेर सारा प्यार आ रहा है चैट बॉक्स में. तो करण Okay, गो okay. अहेड. हम कैसे रोक सकते हैं आपको फिर? Okay, all right. Okay, so I am Karan, known as Kafri Nazma. I studied from Ferguson College, Pune. Okay, right now I am in my hometown Varanasi, the city of temples. Okay, so okay, I just started with my poem. इसमें एक कहानी है एक ऐसे छोटे लड़के की उसको एक बड़ा शहर, एक बिग सिटी, मेट्रो सिटी बुलाता है और क्या कहता है, कुछ इस तरीके से कहता है, कुछ यादों के निशान को अपने तकिए पे छोड़ चले आओ. कुछ यादों के निशान को अपने तकिए पे छोड़ चले आओ. एक चांद को उड़ता बादल सा तन्हा छोड़ चले आओ. चले आओ समंदर सा जिसकी लहरों का कुछ साहिल ना हो. या चले आओ उस परिंदा सा जिसका इस तन्हा सफर में कोई राही ना हो. पर याद रखना, जिस दिन तुम वो सब छोड़ चले आओगे, एक घर होगा तेरा जिससे तुम मुंह मोड़ चले आओगे. एक सुनी गलियां होंगी जो कल तक तेरा नाम पुकारती थी. एक तेरे घर की वो चार दीवारी होगी जिसमें माँ तुझे लोरियां सुनाती थी. एक तेरे घर का वो आंगन होगा जिसमें अपने पिता की उंगली थाम तूने चलना सीखा था. एक तेरे घर में बड़ा वो टेबल बहुत ही होगा उम्दा, बहुत ही उम्दा. जिसमें रात रात भर जग तूने पढ़ना सीखा था. चले आना छोड़ उन सब यादों को बंद करके एक बस्ते में और भूल जाना अपनी 24 साल की जिंदगी को इन 2 घंटों के रास्ते में. और बैठ जाना बहुत फिर ही तुम प्यारा, भी बहुत ही. और बैठ जाना फिर तुम इस मंडी में और अपने ईमान का व्यापार करना और झूठ मूठ की जिंदगी पर फिर तुम भी गुमान करना. यही सिखाता है आज का वक्त. इसमें तेरा कोई कसूर नहीं और तेरे सिवा उस बूढ़े बुढ़िया का दूसरा कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं. वाह, काफी ब्यूटीफुल, लाजवाब. ब्यूटीफुल करण, बहुत ही beautiful. प्यारा, बहुत ही प्यारा. और अब तो मतलब मुझे पता होता अगर तो मैं शायद चैट बॉक्स के लिए कहती ही ना, पहले ही कहती थी हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल थ्री Okay, परफॉर्म. प्लीज गो बिल्कुल मैम. अहेड. Okay, and this is the nazm. There is so many difference between the nazm poem and the शायरी. तो अब मैं जो पढ़ रहा हूँ वो नज्म है. ओके, तो ध्यान दीजिएगा. कैफियत है मेरे इश्क में, कैफियत है मेरे इश्क में, मुझे वफा की तुझसे चाहने. मामला केवल इन 4 आँखों का है, जमाने का इसमें कोई काम नहीं. कुछ कहो या चुप रहो सनम मेरे, इस रात सी होगी अब कोई रात नहीं. बस जी लिया सारी जिंदगी इस पल में, अब जिंदगी में रहा कोई मलाल नहीं. मुझे कुर्बत चाहिए तेरे इश्क में, कुर्बत मतलब नजदीकियां होती हैं.
मुझे कुर्बत चाहिए तेरे इश्क में, ये रूहानियत की बात है, इसमें जिस्मों का कोई काम नहीं। जो प्यार होता है, बहुत ही मोहब्बत प्यारा, होती है, बहुत ही। वो रूहानियत की बात होती है, उसमें जिस्मों का कोई काम नहीं होता। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ूंगा, मुझे कुर्बत चाहिए तेरे इश्क में, ये रूहानियत की बात है, इसमें जिस्मों का कोई काम नहीं। जो पर्दे में है उसे पर्दे में रहने दो, जो पर्दे में है उसे पर्दे में रहने दो, ये इस रात का कोई इनाम नहीं। जो लब हैं तेरे भीगे, भींच ना उसे, अब हमसे शर्म की कोई बात नहीं। लड़खड़ा रहे पैर तेरे तो लड़खड़ा वाह। जाने दो, ये इस रात की आखिरी जाम नहीं। कैफियत है मेरे इश्क में, मुझे वफा की तुझसे कोई चाह नहीं। बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। लाजवाब। थैंक यू, थैंक एंड आई गेस यू हैव वन मोर करण। यू। यस आई। काम लेकिन ये लाइनें मतलब आप किसी से कह दें तो बेशक उसे इश्क हो ही जाएगा, कई बार टूट राइट? चुका है। एंड तो बिल्कुल मैम। तो हुआ क्या करें सर? ओके, सो इट इज माय काम्या मैम काफी शांत होकर सुन रही है ये लाइन बहुत अच्छी थी। पोएट्री का। ओके, एंड वन मोर, एंड इससे मैं एक हर्षा अग्रवाल जी हैं, ठीक है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ इंस्टाग्राम पे। उनकी एक पोएम थी, उसका एक वर्ड मुझे बहुत पसंद आया था, और उसका नाम था कि फुर्सत वाला प्यार, ठीक है। तो मैंने उस वर्ड को वहीं से लिया है और अपने इस नज्म का भी टाइटल फुर्सत वाला प्यार रखा है। तो मैं उसको सुना रहा हूँ। क्यों लिखूं कोई मैं एक नया काव्य, ये भी एक नज्म है, ध्यान दीजिएगा। क्यों लिखूं मैं एक और नया काव्य, जिंदगी को जिंदगानी बताने के लिए क्यों एक नया और शब्द चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तेरा साथ सदियों तक, मुझे तो बस तेरे बाहों में गुजारी वो पुरानी शाम चाहिए। मैं हूँ एक आवारा परिंदा, मुझे अपने इश्क से बांध मत, मुझे ये पूरा खुला आसमान चाहिए। मुझे दिन भर का वो अधूरा तेरा साथ नहीं, मुझे तो बस तेरा वो 2 पल का फुर्सत वाला प्यार चाहिए। मुझे नहीं बढ़ना है रुक्मणी तेरे आंगन की, मुझे तो बस राधा की तरह मेरे नाम के साथ तेरा नाम चाहिए। मेरे कांधे पर तेरा सिर रख, सोने की कोई चाह नहीं, मुझे कांधे पे तेरे सर रख, सोने की कोई चाह नहीं। मुझे तो बस फोटो पे दिन भर में एक बार मेरा नाम चाहिए। मुझे चांद तारों की कोई चाह नहीं, मुझे तो बस अपनी किताबों में तेरा दिया वो गुलाब चाहिए। मुझे तेरे बाहों की गर्माहट की कोई चाह नहीं, मुझे तो बस तेरे हाथ में मेरा हाथ चाहिए। मुझे इस रिश्ते का कोई नाम ना हो, कोई गम नहीं, मुझे तो बस तेरा साथ वो फुर्सत वाला प्यार चाहिए। That is the end of my all the Speechless. nazma and poems. अरे सर And आई मस्ट से माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज्म, बहुत खूबसूरत शेर, एंड वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड द कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह, टोटली। thank you, और thank इनके you. प्यार हाथ का टूटने मतलब तक मैम डालिए। मैम मैम यस, मैम मैं करना चाहता हूँ कि मुझे हाँ जी, मनोरंजन कुछ जी। याद आ रहा है जी 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 जी। करण सर के आज मुझे एक लाइन याद आ रहा है कि करण सर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ जी कि मनोरंजन जी। ये जो तेरी कमी, जी जी, ये है कि ये जो तेरी कमी है मुझे खलती क्यों है, हाँ हाँ, ये जो तेरी कमी है मुझे खलती क्यों है, नदियां शांत है तो धारा बहती क्यों है, मिटाने भुलाने का ये सिलसिला कब तक चलेगा, तेरी याद की रोशनी बुझती है तो फिर जलती क्यों है। हाँ हाँ। सुनिएगा तो मेरी जी भी, मैं आपका इस पे रिप्लाई कर दे रहा हूँ। तिजारत ए मोहब्बत का नाम है रुसवाई, तिजारत ए मोहब्बत का नाम है रुसवाई, मेरे सनम आए ना आए ये हिज्र की रात, वाह, हिज्र की रात क्यों होती है, जुदाई शायद की रात को कहा जाता है। जी 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 समझ रहा हूँ। बहुत ही ठीक है। मतलब जवाब मजा आ में है गई। कि क्षमा बांध दिया आप लोगों ने, और जवाब अगर है आप कि इस सर जुगल बंदी करेंगे तो बाकी हाँ, तो पार्टिसिपेंट बाकी मुझे और रह काम्या को जाएंगे, बहुत मारने राइट वाले राइट। हैं।
No, 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 no. Right? सर मैं तो- बस एक लाइन में मैं सर के जवाब में देना ओके। चाहूंगा। ये तो एक वो लाइन, सब तो एक ठीक लाइन। है। Okay. मनोरंजन जी ये बताइए आप मैं किसकी कुछ नहीं तरफ बोलूंगा। से हैं? जेईसी पब्लिकेशन की ओर से ही है ना? मतलब चैतन्य ने जरूर जी, आपको जी। पैसे दिए हैं कि बीच बीच में फिलर डाल देना भाई, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट, योर नेम इज मैं चुप हो जाता हूँ। एंटरटेनिंग एंड यू आर। नहीं, गो बस अहेड, एक इजाजत, बस दी एक बार बस दी इजाजत दे आपको करण सर इजाजत। के जवाब में। क्यों शहर से जाते जाते मुझे तुम मिल गई, क्यों शहर से जाते जाते मुझे तुम मिल गई, यूं कागजों पर तेरी बात न करना पड़ता, बस ये हंसी और अच्छाई छुपा लेती अपनी, सुकून खातिर तेरी तस्वीर न मांगना पड़ता। भाई ऐसे मत लग रही, याद आ जाती है कुछ। ओके, एक बहुत मेरी सही। तरफ से। ओके, and who's that? May we know your name please? Just a moment. Akanksha Rai. Yeah. And thank you to all of your love. Okay. थैंक यू कभी ये सोच के परेशान मत होना कि मेरे प्यार का हर्जाना कैसे चुकाओगे। कभी ये सोच के परेशान मत होना कि मेरे प्यार का हर्जाना कैसे चुकाओगे। मोहब्बत हो गई तो कर लिया, मोहब्बत हो गई तो कर लिया, उसका हिसाब लगाने बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू। आकांक्षा जी बहुत अच्छे। राइट, तो इससे पहले कि हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट नेक्स्ट की बात बोली आपने। ओके, तो इससे पहले हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाएं, मैं कहना चाहूंगी जो आजकल का माहौल है, बाहर बड़ा मेस है, राइट, वी आरंट सेफ, सम आर लाइक ऑन द फ्रंट लाइन, बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, लेकिन कुछ लाइनें कहना चाहूंगी, अच्छी लगे तो थोड़ा सा इजहार जरूर करिएगा अपनी पसंद का, कि हौसले अगर बुलंद हो, हौसले अगर बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें मुसीबतें ये पैंडेमिक ये सब तो जिंदगी में आम है। शानदार, बहुत सही। एंड आई रियली विश कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से हमें जल्दी निजात मिले और एक कभी हमें मौका मिले कि ओपन माइक वर्चुअल करने के बजाय हम सब इकट्ठे होकर कहीं पर कभी एक साथ मिलके ओपन माइक कर सकें और एंजॉय कर सकें। मगर इसमें तो इंडिया के कई जगह से लोग हैं ना। कोई बात नहीं, तो आपको मिलने में ऐतराज है करण जी? अरे बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, तो yes, our next participant is Kajal Yadav. Is she with us now? Kajal ji, are you with us? I can't see her. I guess she's not here. Then next is Dr. Sulekha Yadav ji. Sulekha ji, she's also not with us. Then Ayush Saxena. Okay. Kamya, you just call out from your list, please. So I Shivam guess a lot of people are facing trouble and all with the network and the switching of the platform maybe. करण जी ने इतनी अच्छी नज़में बोली है कि बाहर मौसम भी बरसाने लगा है। Oh really? Where are you right now? तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। I am in Gurgaon right now. I'm in Lucknow and यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। I wish थोड़ा सा असर बादल इधर भी आ जाए। नज़मों का असर हुआ है। यहाँ पे करण जी की नज़मों का असर हो चुका है। असल में वो दिल से सुनने से होता है। Oh, what do you mean by that? We all are listening by heart only and with little ears. Okay, so Kamya, please call out the next one. वैसे तो मैं आज का पार्टिसिपेशन, हाँ जी मनोरंजन जी। मैम वैसे तो मैं आज का पार्टिसिपेशन नहीं हूँ, लेकिन पर आपने ऑलरेडी चार वैसे चांद तो मैं लगा आज दिया का है सर। पार्टिसिपेशन नहीं हूँ, बट टुडे ओके मैम। आपने ऑलरेडी हमें एंटरटेन करके रखा हुआ है, राइट काम्या? जी बिल्कुल बिल्कुल आनंदी। Yeah. And who's our next participant? शिवम प्रताप सिंह। लास्ट में एक मौका दिया जाए मुझे भी। जी आप ही का है प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। शिवम प्रताप सिंह जी हैं। आयुष सक्सेना जी इज हियर। ओके, सो मैं आयुष आप अपना दर्द लेकर आए हैं सर, आपका ही नाम है मेरा दर्द। ओके ओके।
तो सर आज आप हमसे दर्द शेयर करने वाले हैं या खुशियां बांटेंगे? क्योंकि व्हाट यू हैड सेड वो आज खुशी बांटने की बात कर रहा था। चलिए, टॉपिक मोटिवेशन का था तो सोच रहा हूँ मोटिवेशनल कर दूं। राइट। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। हेलो एवरीवन। लोगों से सुना है कि दर्द बांटने से कम होता है, ऐसे ही कुछ दर्द भरे अल्फाज मैं आयुष सक्सेना आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, साथ दीजिएगा। मेरी पोएम का टाइटल है तू अपना काम करता चल। तू अपना काम करता चल, गम तो सबके पास है, गम तो सबके पास है, तू खुशी बांट, खुद हंस सबको हंसाता चल। तू अपना काम करता चल, तू अपना काम करता चल। आएगी मुश्किल और कठिनाई भी, आएगी मुश्किल और कठिनाई भी, तू सबका हल निकालता चल, तू सबका हल निकालता चल। तू अपना काम करता चल, तू अपना काम करता चल। मेहंदी की तरह खुद पिस, मेहंदी की तरह खुद पिस, मगर रंग गहरा करता चल। मेहंदी की तरह खुद पिस, मगर रंग गहरा करता चल। तू अपना काम करता चल, तू अपना काम करता चल। फूलों की तरह मुरझा जा मगर, फूलों की तरह मुरझा जा मगर, कांटों को तू बीनता चल। फूलों की तरह मुरझा जा मगर, कांटों को तू बीनता चल। तू अपना काम करता चल, तू अपना काम करता चल। तू हर मुश्किल से लड़ता चल, तूफानों में भी चलता चल। तू हर मुश्किल से लड़ता चल, तूफानों में भी चलता चल। रास्ते दिखेंगे अंधेरे में भी, तू बस आगे बढ़ता चल। तू अपना काम करता चल, तू अपना काम करता चल। थैंक यू सो मच। श्रीराम जी बहुत बेहतरीन सर, बेहतरीन सर। अपना काम करते चल करते चल। मैं श्रीराम जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। यस, He has profession and passion, one for engineer and one for writing. और ये आपका पैशन यहाँ पे दिख गया सर। थैंक यू जी सर। तो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। मूविंग अहेड। अक्ता अग्रवाल कहाँ पर है? I guess not there. Shivam Pratap Singh. I'm a bit confused. मेरा दर्द is आयुष और शिवम। मेरा दर्द is आयुष सक्सेना। यस यस Am I right? Right. Okay. शिवम प्रताप सिंह होंगे यहाँ पर? I guess no, but someone has joined us just now. I'm just going to check. Okay, our organizer is here, everybody. Okay, Akhya is with us. She's the organizer. जो posters आपने देखे, जो मेरा पोस्टर, आपका पोस्टर और ये जो लोगों को जोड़ना, ये सारा काम आख्या जी का है। Thank you, ma'am. Welcome Akhya. All the best to everyone and hope you all are going to rock it. They are actually doing. बहुत मजा आ रही है हम लोगों को। And sorry to join late. तो सिर्फ बात का है कि सारे नहीं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, पर जो हैं उनके साथ we are enjoying a lot. Yeah. I hope so. Definitely, you must be enjoying a lot. Yeah, I guess. So you people are enjoying. If yes, please hearts again in the chat box. इस तरह से हम लोग आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। हार्ट भेजो, ताली भेजो, उसके बाद स्माइलीज भेजो। तो भेजो। Okay, lot of hearts we have already got. Okay, that's great. Sigda, Karan, Rajni ma'am, guitar. Thank you, Rajni ma'am. Okay, so now let's move ahead. Akhta ji is not here with us. For the next one, I'm gonna say a few lines. कि समुंदर का किनारा और मुंबई का नज़ारा लगता है हमारी अगली पार्टिसिपेंट को बहुत प्यारा। तो अगली पार्टिसिपेंट है हमारी रीमा दे जी फ्रॉम नवी मुंबई। रीमा जी, कैन यू हियर अस? Rima ji, are you there? I guess she was there with us, but I can't hear her. So, Kamya, please call out the next one. Next part, Rima ma'am, आई क्या? I'm trying to. Yeah. Am I audible now? I can see her. Rima ji, can you hear me? Yeah, you are. I'm audible to you all. Yes. Am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Okay. So I'm from Vashi, Navi Mumbai. Let me introduce myself. A few lines. I'm a postgraduate in zoology and B.Ed. I'm a qualified ex-teacher. I'm a homemaker for the last 2 decades.
got my blog. I'm a blogger. Then I love to write poems, short stories, and quotes. Then I've got my page on Facebook. It's called Musings of a Homemaker. I've written a lot of poems over there. I love to write, and also like I do love to sing also. I'm also an animal welfare person. I have got 7 pet cats at home, and I feed around 35-40 stray cats and dogs near my area, in my sector and the nearby sector. I have treated, and I also get them neutered also, that is sterilized. I've got quite a lot of animals, stray cats sterilized, and I get cashless adoptions of Indian stray kittens done. Around a dozen kittens are in loving homes due to my efforts. So this is in short what I am. Now my poem which I have written today, which I will be reciting today, has basically got motivation. It's a motivational poem, motivation as the theme. So I will just introduce what my poem is about. This poem is inspired by the incredible story of Hima Das, a poor farmer's daughter from an obscure village called Bhim in the northeast. She fought poverty, then she fought discrimination and prejudice to become a leading athlete. Today, the Bhim Express is the pride of the nation, having picked up medals galore at international sports meets. So basically, the message which I want to convey from my poem is that in such instances of people who rise to great heights from in such a position they are, that they don't have shoes to wear, and then you see that they actually rise to the position that a leading shoe brand actually has them as their ambassador. So this should motivate us to overcome the dark hours of life, as there is always light at the end of the tunnel. So I shall start my poem. The name of my poem is The Sun in Her Palms. I hope I am audible to all of you. Yes, ma'am, you are audible. Yes, completely. Yes, ma'am. Poor farmers, thank you. A poor farmer's daughter she was. They said, you cannot run. She had no shoes. She swore to herself. She would not let poverty defeat her, discourage her. She had no weights, so she exercised with old tires. Hard work, sweat, tears and toil, grit and determination led to medals galore, sniggers replaced by awe. The young girl from an obscure village was now blazing glory. Newspapers headlined her. Medals at international level. Media's golden poster girl. Humility personified, never forgot her roots, donated lakhs for corona warriors. So the girl who had no shoes was now the face of a leading shoe brand. The girl who had no weights had the sun in her palm today. So when you are down, remember, the only way you can go is up. Never give up. Keep fighting till you win. Let darkness never intimidate you. Who knows? Who knows tomorrow? You may be cupping the sun in your palms. Thank you so much. This is one of the many wonderful ma'am, really. I hope you liked it. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी ma'am. Really loved it. I'm on the younger generation right now. Most of you are so young. No, you are 16 by heart, ma'am. As I said in the beginning itself. So really, I have a 25-year-old daughter. Okay, ma'am, you're so lovely till now also at this age. And yes, I'm 52. Because I believe age is just a number. Yeah. By heart, you are Yeah. 16 forever, ma'am. Definitely. Thank you so much. God bless Rima you. ma'am, हाँ जी बोलिए. actually your poem है. मैम ये आपकी आ गए poem हमारे मनोरंजन जी. हाँ जी मैं सुन रही हूँ, तब से मैं सुन रही हूँ, उनकी बीच में वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ बहुत अच्छे से. बहुत अच्छे से. आपकी हाँ जी बोलिए. मैं आपकी पोएम को मैं अच्छे से फील कर सकता कि मैं एक फार्मर का आई एम फार्मर सर, तो आई थैंक यू जी. बहुत अच्छी बात है. एक बात याद रखिए, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर रूट्स. रिमेंबर वन थिंग दैट यू शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर रूट्स. यू शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर रूट्स कि भाई हम यहाँ थे और हम यहाँ आए हैं. पहली बात ये है, बट यू शुड नेवर बी proud also. You should not be over proud, and मतलब कि don't get a soul in head. These two things you must remember in life. कि मैं कहाँ से आया. There is a thin line between these two terms, right? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So wish you all the success in your this endeavors. तो भाई रीमा मैम के लिए भी अपनी तालियां आप चैट बॉक्स के थ्रू भी भेज सकते हैं in the form of hearts.
और the other thing, ये Rima ma'am, देखिए। this is for you. Oh wow, I'm also This animal is lover, ma'am. This is a kitten. And I'm always behind the I stray get adoptions animals, and my done. parents are like, "Why are you doing so? Don't do that." Love to see you and this cat, cute cat. She's a kitten actually. She's only 4 months old. So She had cute. severe fungal skin infection. So I got her Oh. treated and now she's up for adoption. Hopefully she should go to a good home. May God bless you, ma'am. You are really doing Thank you so a much. noble Thank you. thing. Really, loved it. Thank you. मैम Thank you, ma'am. रीमा मैम के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। हाँ, मैं बोलो सोच ना रही थी बेटा। मनोरंजन जी आपने बोला क्यों नहीं? बोलिए ना, बोलिए। मैम काफी अच्छे मतलब क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हैं मैम, रोक नहीं पाते हैं। और जिस तरह से रीमा मैम ने तो कहिए ना, कहिए, हम सुन रहे हैं। तो हाँ काहे नहीं मैम, जरूर कहेंगे। तो एकदम है भाभी जी के जैसे बोले आप। हाँ जी, रीमा जी सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। हम इलाहाबाद के हैं, हम इलाहाबाद के हैं, बंगाली हैं पर हम इलाहाबाद के हैं। एकदम हमार नानी भी हुए की है, बिल्कुल सही। हमको पक्का भोजपुरी आता है। मैम मैं भागलपुर अंग प्रदेश से हूँ, बिहार से, अंग प्रदेश भागलपुर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैम आपके लिए बोलना चाहूँगा, जिस तरह से आपने मोटिवेशनल बताया है और कि जो रह गया बाकी दुनिया से मैंने वो माँ से पाया है, जो रह गया बाकी दुनिया से मैंने वो माँ से पाया है, नहीं भूला बचपन की भूख जो माँ की दूध ने बुझाया है, हिमालय की चोटी फतह करने की जुनून जिंदा रख, एक दिन ये भी पूरा होगा क्योंकि खुदा ने माँ को बनाया है। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मनोरंजन जी बहुत ही अच्छे। ये अच्छी बात है कि आप हरदम अपने माँ बाप से इतने जुड़े हुए हैं, माँ पिताजी से इतने जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। राइट। It's a rare quality in today's world. But हाँ, यंगर जनरेशन को देख रही हूँ, you all are also a lot like us. लोग बोलते हैं जनरेशन गैप, बट आप भी हमारे ही जैसे हैं। सही कहते हैं ना, रोशनी दिखाने की जरूरत है मैम, तो वो जो गैप है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मैम आप जब आप हमारे लेवल पे आएंगे, हमारे एज में आओगे, तब आपको भी जनरेशन गैप फील होगा अपने बच्चों के साथ। मुझे अभी से होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल मैम। चलो भाई, कैरी ऑन बेटा। ऑलवेज यूज्ड टू से ना कि मुझ में एक 60 साल का इंसान बसता है, वो गैप वो फील करता रहता है। देखो भाई, तो जोक ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर बाकी पब्लिक गुस्सा हो जाएगी। अभी आक्ता अग्रवाल शायद निकल गई, क्यों निकल गई भाई? आई गेस मे बी नेटवर्क इशू भी होगा, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया एंड देन लेफ्ट किया, ये हो सकता है। तो आक्ता जी अगर दोबारा आती हैं तो डेफिनेटली उनका टर्न होगा। काम्या, प्लीज कॉल आउट द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। So our next participant is Ayush Bundal. So Ayush जी आप यहाँ पर हैं? Ayush ji, are you here? I guess he's not here. Okay, let's move ahead with another name. That is Shilpa Singh. Manush. Okay, Maunsh. I'm not sure with the pronunciation. So Shilpa ji, are you with us right now? I guess no. Then Siddharth Tanakam. Not here. Then Vishakha Kumari Saxena ji. No. Here. Kajal. Okay, those who are here but have not got chance to speak till now. So please write your name in the chat box so that we can call you out from there. अनमदीन, पूनम मैम होंगी यहाँ पर? I have to check. हाँ जी, आप देखिए। Yeah, she isn't here. She isn't here. Yeah, Kangsha, of course you can. Of course you can. I hope अपराजिता जी शो एंजॉय कर रही हो। हाँ, वो भी था अच्छा। She isn't here, I guess. हेलो। Yes, आकांक्षा जी। हाँ, तो मैं आप लोगों को ना, मैं ना अपने ससुराल जाने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सेकंड को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई।
लेकिन फिर मेरे को देखना था, इसलिए मैं रुक गई यहाँ पे। कोई बात नहीं, आप कर रही हैं तो डेफिनेटली हम आपका नाम पब्लिकेशन हेड तक जरूर पहुंचाएंगे that you were here with us since beginning of this event and making it happening. Akta ji is also here, so after Akanksha ji, Akta ji will perform. Yes, Akanksha ji, please go ahead. हाँ, तो अभी ये 18 को मेरी दादी एक्सपायर करी थी। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हो या फील करते हो, तो आपके सामने जो सीन चल रहा होता है, आप उसको देख के आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें तुरंत आती हैं। लेकिन इतने सारे काम थे तो मैं उसको तुरंत तो नहीं लिख पाई थी, लेकिन मैंने उसको दूसरे दिन लिखा था। तो उस टाइटल का नाम है नाम से मिट्टी का सफ़र। हाँ, तो ये कोरोना टाइम, तो कोरोना टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी सिचुएशन आई है कि उनके बच्चे या उनकी दादी, उनके दादाजी, ऐसे घर के कोई भी मेंबर एक्सपायर करे हैं। तो ये मैंने औरतों के लिए लिखा है कि नाम से मिट्टी तक का सफ़र ऐसा होता है आज पहली बार जाना। नाम से मिट्टी तक का सफ़र ऐसा होता है आज पहली बार जाना। मतलब सोचो, आप मेरी दादी 80s में आई थी। 80s में क्या, 80s में तो पापा ही हुए थे। 70s में थी और उस टाइम वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी। हाँ, आप सोच सकते हो कि वो कितनी मतलब उनको फैशन सेंस कितना प्यारा था। सोचिए कि नाम से मिट्टी तक का सफ़र ऐसा होता है आज पहली बार जाना। जवानी में स्लीवलेस ब्लाउज के साथ मैचिंग रबर बैंड, चूड़ी, बिंदी तक सब कुछ परफेक्ट सा रखती वो औरत आज सफ़ेद कपड़े में बन के चली गई। अपनी शादी में दहेज में लाए बिस्तर पे शान से बैठा करती वो औरत आज एक पतली चटाई पे लेट के चली गई। आंखें बोझिल हो गई ये दृश्य देख के, जब इतने सालों से जिनकी सेवा की सबने आज पड़ोसी को कहते सुना कि जल्दी से ले जा भैया, इतना देर लाश नहीं रखते के घर में। नाम से मिट्टी तक का सफ़र ऐसा होता है आज पहली बार जाना। बालों में गजरा लगाने वाली औरत आज खुद के ऊपर फूलों की माला डलवाए अपना अंतिम दर्शन देते हुए चली गई। निर्मम सा ये दृश्य बस कांच के उन चंद टुकड़ों और चंद कपड़ों में लिपटी दुनिया से विदा लेके चली गई। नाम से मिट्टी तक का सफ़र ऐसा होता है आज पहली बार जाना। आपका दर्द आपके हर एक शब्द में झलक रहा था आकांक्षा जी। एंड यस, यू आर राइट, बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ है एंड यू हैव एक्सप्रेस्ड दिस थ्रू योर पोएम वेरी वेल। तो हाथ फॉर आकांक्षा जी थ्रू द चैट बॉक्स, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट नहीं थी फिर भी इन्होंने अपना कीमती वक्त हम सबको दिया। It was beautiful, Akanksha. But yes, now you are part of the list. And Aprachita ji has missed a lot of things, but welcome again. I was listening. I had a con call. So. Okay. Thank you. That's great. That's great. Oh, the pleasure is all mine. Actually, I was thinking if I could perform at the very end of your program, if there are a few minutes. Sure. खुले दिल से आपका स्वागत है. And we have Akta also here. Akta ji, can you hear us? Kamya, I guess Akta is yes, here. ma'am. Okay. Hello. Akta. Hello, yes, ma'am. Hello, yes, ma'am. Akta ji, क्या आप जल्दी हैं स्वभाव से? Akta ji, are you ready for the participant? हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगी। We would love to see your smiley face. Okay. Hello, ladies and gentlemen. और अक्ता अग्रवाल जी। Hello, Akta ma'am. एकता नाम है मेरा। Oh, sorry. Hello, Ekta ma'am. Okay, it's from A, so we were very confused what to pronounce. Yes. And we were thinking what could be the meaning of Akta. No, it's Ekta. Okay, so Mike is.
Yes, my name is Ekta Agarwal. I am from Kolkata. My poem name is Courage. Poem. Time does not really wait for anybody and yeah. Okay, I'm too bad at the languages. Hello. Can you please? Hello. Can you repeat? I couldn't hear you. Hello. 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 Yes, you are audible. Yes, you are audible, ma'am. Yes, ma'am. Poem. Yeah. बांग्ला लैंग्वेज Introduce yourself. Introduce yourself in. नहीं, two बंगाली lines. नहीं, हिंदी आता है. My name is Ekta Agarwal. I am from Kolkata. I am from last year student. That's all. My poem name is Courage. Time does not wait for any moment just goes by. Just a moment. Just a moment. Ekta, actually, Manoranjan, your mic is on now, so it's disturbing. So please mute it. Thank you so much. And I'm so sorry, Ekta, for this. Can you please go ahead? No problem. No problem. Yes, ma'am. Time does not really wait for anybody and moments just go by. If you don't have the courage to speak your mind, you may not even find a knowledge of any kind. So, gather that courage and the will to endure so much with time that will bring you closer to life, a peace that you will find. Thank you. Wonderful. Thank you, Ekta ma'am. I'm really glad that you are here. Hello, Because your name was popping and disappearing from the screen, so we were thinking कि पता नहीं हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको सुनने का. Network issue. हाँ, right. प्रॉब्लम हो रहा था. Right. Thank you. Thank you. Okay. So the next name over here, Siddharth Kanakam. Is Siddharth among us? I guess no. Okay, so our guests can also perform, as many of the performers are not here. Maybe they will perform the next day. And without taking too much time of yours, right, we would love to hear you out. So the guests, especially like Aparajita said that she also wants to perform. So is she here, Aparajita? Are you here? Yes, I'm here. Yep. Yes. Thank So- you for giving me this opportunity. I've just popped like a bubble gum out of nowhere, and you have welcomed me like anything. Thank you so much for that, Anam and Kamya. Both of you are super sweet. अपराजिता आपने सुना होगा, डेफिनेटली आपने ये सुना ही होगा कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम गेस्ट को भगवान मानते हैं, राइट? अतिथि देवो भवा. So you are Devi for us today. My God, right. God bless you, बच्चा. तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखती हूँ, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग यहाँ पर हैं. मैं सुन रही थी, मेरा एक एयरफोन इसमें था और एक में मेरा कॉल चल रहा था, because I didn't need to buy, I just had to be there. I was listening everything. बहुत लोगों को सुना. So this was a poem जो मैंने लिखी थी लास्ट लॉकडाउन में लिखी थी, और ये मैंने लिखी थी फॉर डॉक्टर्स बेसिकली. एंड सुनिएगा. हकीम सुनो, इंसान नहीं भगवान हो तुम. घर नहीं ना सही हम तुमको निकाल बाहर करेंगे. घर नहीं ना सही हम तुमको निकाल बाहर करेंगे, लेकिन तालियां बजा के तुम्हारा सम्मान करेंगे. हकीम सुनो, इंसान नहीं भगवान हो. तुम्हारी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं हमको. तुम्हारी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं हमको. तुम हमें ठीक करते करते चाहे साथ ही मरो, लेकिन शंखनाद कर हम तुम्हारा धन्यवाद तो करेंगे. क्योंकि हकीम सुनो, इंसान नहीं भगवान हो. देखो, हमें गलत मत समझना, हमें गलत मत समझना. बहुत इज्जत और कद्र है हमें तुम्हारी.
बहुत इज्जत और कद्र है हमें तुम्हारी, मगर किसी मदद की दरकार ना करना, मगर हमसे किसी मदद की दरकार ना करना। दूर अपने मंदिर में रहो, तुम हमारे पास ना आना। दूर अपने मंदिर में रहो, हमारे पास ना आना। हम दूर से ही करबद्ध हैं भगवान, क्योंकि भगवान हो तुम। और लोगों सुनो, हकीम की हालत नाजुक है, बीमार और बीमारी तो भूल ही जाओ। जब आशियाना तक छीन ले रहे हम इनका, जब आशियाना तक छीन ले रहे हम इनका, तो आखिर क्यों ही उम्मीद करें हमसे, और क्यों कहें कि इंसान नहीं भगवान। ये पोएम मैंने लिखी थी उस वक्त। आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स जिनको लिटरली उनके फ्लैट से, रेंटल हाउसेस से निकाला जा रहा था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स के पास रहते हैं। और दे आर मोस्टली जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो सीनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, जिनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो लिटरली उनको घरों से बाहर फेंका जा रहा था, और अभी भी फेंका जा रहा है। उनको, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। दे यूज्ड टू स्लीप outside where they were practicing. A few of them were sleeping in the morgue because they didn't have space to live. तो इसलिए मैंने that is because हम एक्चुअली उनके साइड की स्टोरी जानते नहीं है, बिकॉज डॉक्टर हमारे लिए भगवान होता है, हम उससे बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा था कि इंसान नहीं भगवान हो तुम, हम दूर से ही करबद्ध हैं, हमारे पास ना आना। लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरती से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, और अगर हम आपको नहीं सुन पाते तो ये हमारा नुकसान होता बेशक। ये खुशी है कि हम आपको सुन सके। थैंक यू। ओके, तो आज के हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं यहाँ पर, बट गेस्ट हैं जैसे स्निग्धा सिंह जी हैं, सुषमा सिंह जी हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे गेस्ट भी चंद लाइनें कहें और इस शाम में चार चांद लगाएं। बिल्कुल मैम। जैसे मनोरंजन जी ने हमारा पूरा मनोरंजन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल अपने नाम की तरह। स्निग्धा सिंह जी एंड सुषमा सिंह जी, इफ यू कैन हियर मी, वी वुड लव टू हियर यू। स्निग्धा सिंह जी मेरी गेस्ट है, मेरी ओर से सुषमा सिंह जी मेरी गेस्ट है, दे आर माय फ्रेंड्स आल्सो, और लिखने का चस्का इन्हें भी है। तो स्निग्धा सिंह जी प्लीज। Yes, it's my privilege to be here and joining this group. And before I go with my new creation, I would like to appreciate both of you, Miss Afreen and Manya Kakkar, I guess, for this endeavor initiative. Kamya, okay, all right. Which they had taken, and because nowadays there is such a negativity around us. If you people are making this effort, it really works and make us feel something different and good in such a surrounding and ambience, right? Right. So actually, I would like to share a piece of my poem, which I wrote in the beginning of my writing career, you can say. Right, and the title of which is Ulji Julfein. Title is like mine. Yes, Ulji. You're saying yes? Julfein, right. I cannot. You find my Zulfe Ulji hui? It sounds perfect with a deadly combination. Yes. And since beginning, I have been observing that both of you are very inquisitive in listening to others, and the way you are responding to them, it's really appreciative, right? So I cannot share. Extremely sorry for it that I cannot turn on my video because I am not in a state right now to show my face, right? जी रजनी जी सही कहा। Shall I start? Yes, सिंघवा। क्योंकि इससे पहले काफी माहौल भी बन चुका है, गर्माहट भी आ चुकी थी, बारिश भी शायद आने ही वाली। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। So I thought right. I should share something in this connection, right? This is just basically you can think of after marriage,
or after 5 or 6 years after marriage, how the couple feel, especially the girl, right? So the title is उलझी जुल्फें, उलझी जुल्फें सुलझा दो ना, उलझी जुल्फें सुलझा दो ना, अभी तो पास बैठो बहला दो ना, उलझी जुल्फें सुलझा दो ना, कभी तो पास बैठो बहला दो ना, क्या भूल हुई बतला दो ना, क्या भूल हुई बतला दो ना, उलझी है जुल्फें सुलझा दो ना, कभी तो पास बैठो बहला दो ना। हाँ कई साल गुजरे इस पल के इंतजार में, अपने भी चैनल पे। हाँ कई साल गुजरे इस पल के इंतजार में, कभी मैं रूठूं तुम मना लो ना, हाँ वो तो है। कभी मैं रूठूं तुम मना लो ना, कभी तो पास बैठो बातें करो ना, उलझी है जुल्फें सुलझा दो ना। एंड इसका लास्ट स्टैंजा है, चलो कभी सैर पर, ऐसा करते हैं जितने चलो कभी सैर पर जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम, तो अब चलो कभी सैर पर जहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, कभी तो निकालो कुछ पल फुर्सत से मिलो ना, उलझी है जुल्फें मेरी सुलझा दो ना, कभी तो पास बैठो बहला दो ना। कवर पे लिख देता हूँ। शुक्रिया मैम आपकी। बहुत ही हाँ मुझे अपने उस पति की याद आ गई जो है भी नहीं। हाँ मुझे पुराने टाइम की So this is for you, Snigdha ma'am. No, I was so afraid of that. If that is what going to happen, I am fine. That was so heartfelt, ma'am. You were amazing. Right. I guess we are facing network issue क्या? थोड़ा बहुत. Maybe, but we can hear you, Kamya. Okay, thank you. Okay, तो हमारी एक और गेस्ट हमारे बीच हैं सुषमा सिंह जी। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद मेरा टैगलाइन है, तो आई होप कि आप लोग माइंड। सबसे पहले तो काम्या जी को और आफरीन जी को एक सफल मंचन की बधाई, और जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने प्रतिभाग किया, क्योंकि इस नकारात्मक परिवेश में कुछ भी सकारात्मक अच्छा है, क्योंकि आप न्यूज़ देख रहे हैं हर जगह कुछ बहुत अच्छा सुनने को नहीं मिलता, जबकि हमारा मानना अच्छा भी हो रहा होगा समहाउ। तो ये बहुत अच्छी आप लोगों ने वो करी एक पहल कि कुछ सकारात्मक किया जाए, तो सबको बधाई जो ऑर्गेनाइजर हैं आपके और आप सभी परिवार को। और बहुत ही अच्छी आप लोग मंचन कर रहे हैं, स्पेशली सब बड़े खुश और पॉजिटिव से लग रहे हैं, तो मुझे यही सबसे अच्छा लगा इसमें देखने में। वैसे मैं बहुत ज़्यादा कुछ लिखने का मेरा ऐसा नहीं, बस आप मित्रों की थोड़ी सी वो रहती है। आज सुबह ऐसे ही बैठे बैठे कुछ, कल मेरे एक मित्र ने एक नकारात्मक सी बात बताई मुझे कि अरे वहाँ तो ये हो, प्लीज़ मुझे ना बताएं, वजह जो भी हो मुझे ना बताएं। तो बस एक छोटी सी गुड मॉर्निंग की 2 लाइनें लिखी थी। चलो एक अच्छी शुरुआत का बीड़ा उठाएं, चलो एक अच्छी शुरुआत का बीड़ा उठाएं, इन विषम परिस्थितियों में भी थोड़ा सा मुस्कुराएं। समझ रहे होंगे आप क्यों मैंने ये लाइनें लिखी हैं। तो चलो एक अच्छी शुरुआत का बीड़ा उठाएं, इन विषम परिस्थितियों में भी थोड़ा मुस्कुराएं, खुद भी हंसें औरों को भी हंसाएं, खुद भी हंसें और जो आपके आसपास हैं उनको भी हंसाएं। आज तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ इंसानियत निभाएं, आज तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ इंसानियत निभाएं। बस ये 2 लाइनें थे। That is all from my side, and really a great show that you all have done. Congratulations all of you. Thank you. Thank you so much, Sushma ji. This is for you. I'm trying my level best to applaud. Well written. आपका नंबर क्या है आप बताना चाहते हैं? Yeah, Hello? right, Snigdha ji and Manoranjan ji. हाँ ठीक है। Right. देखिए मैं आपको भेजा हूँ। Hello? उसकी जो बोलने से उसकी तारीफ हो रही है। तो यही Yes. मैं सब्जी Yes. Someone is saying. हाँ Hello. मैं कह रही थी कि मैम ने अभी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात करी है, तो हम देख रहे हैं पैंडेमिक सिचुएशन में ना, इससे पहले लोग एक दूसरे का खून बहाते फिरते थे। हाँ, उन लोगों को किसी का डर नहीं था कि उन लोगों के साथ उन लोगों का क्या उखाड़ सकता है कोई।
हाँ लिटरली, मतलब ऐसा होता है ना कि यार हम मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा। फिर ये कोरोना आया और सबको सबकी औकात दिखा दी। किसी के साथ गलत हुआ, किसी के साथ सही नहीं कह सकती ना, लेकिन लोगों को उनका है तो उससे लिखा था मैंने कि हाहाकार मचा पृथ्वी पे, हाहाकार मचा पृथ्वी पे, ऑक्सीजन की कतार है, खून और प्लाज्मा की लड़ाई और बढ़ रही कतार है। पीपल की छांव को काटा था, अब उसकी कीमत समझ आई है। पीपल की छांव को काटा था, अब उसकी कीमत समझ आई है। जब रुपया फेंक के भी सांसों की कीमत नहीं लग पाई है, जब रुपया फेंक के भी सांसों की कीमत नहीं लग पाई है। क्या खूब दिखाया तूने भी हम इंसानों की औकात, खून पीने वाले लोग भी अब लगा रहे उसकी कतार, खून पीने वाले लोग भी अब लगा रहे उसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात है, क्या बात, वंडरफुल, राइट अक्ता, वेरी वेल सेड, एक्चुअली माइंड ब्लोइंग, राइट। और हमारे जो पब्लिकेशन के जो हेड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आई थिंक ऑर्गेनाइजर साहिबा भी यहाँ पर हैं। वन ऑफ द एडमिन इज आल्सो हियर, हर्ष पांडे जी इज आल्सो हियर, एंड अखिल द कोऑर्डिनेटर इज आल्सो हियर। तो पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि जो थोड़ा बहुत टाइम हमें ये खुशियाँ, ये शब्द, ये पोम्स शेयर करने का मिला है, हमारे एडमिन हेड्स जो हैं, एडमिन डिपार्टमेंट से है, वो भी चंद लाइनें जरूर पेश करें। क्या कहते हैं बाकी लोग? बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, बिल्कुल। अखिल, so would you like to say a few words? यस मैम। ये भी होनहार वीरवानी, इनको वीरवानी समझिए, छोटे से हैं बट टैलेंटेड बहुत हैं। तो वो भी बोल दें कि आप यूज कर लो। मैम कैन आई से? या श्योर। यह जिंदगी बस सिर्फ पल दो पल है, यह जिंदगी बस सिर्फ दो पल है, जिसमें ना तो आज और ना ही कल है, जिसमें ना तो आज और ना ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह, जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह, जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है, जैसे कि यही जिंदगी का सबसे हसीन पल है। धन्यवाद। जी बहुत ही ब्यूटीफुल, 2 लाइनों में सब कह दिया, राइट। एंड आख्या पांडे जी, आप पीछे नहीं रह सकती हैं, तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे। आख्या, आख्या कैन यू हियर? या हियर। ये भी छोटी सी गुड़िया ही है, ये कहना गलत नहीं होगा, बट वेरी टैलेंटेड शी इज। मैं एक एंको के जरिए जानती हूँ आख्या को, एंड पहले मुझे लगा था आख्या पांडे, वेरी हैवी नेम, पांडे, वेरी यू नो, बट जब मैंने देखा शी इज क्वाइट यंग, वेरी यंग एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट 18 19 समथिंग, या राइट, बट वेरी टैलेंटेड, आई मस्ट से। All the posters and whatever we are seeing on the Instagram and on WhatsApp, it's all prepared by her. और ये जो इस वक्त पूरा सेटिंग है, ये सब इनका हाथ है, पूरी टीम का हाथ है पीछे। So over to you, Akhya. Actually, I don't have my diary with me yet. अब आपने मुझे ऐसे डायरेक्टली बुला लिया, I was not prepared. You can say anything you want. Last 15 days से I haven't written anything. They must be facing network issues. She'll join again. First thing कि मैं बिल्कुल भी motivational writer नहीं हूँ। But ये जो निकला है ना, what your heart says, ये आप ही की रचना है। हाँ, ये तो मेरी है, बट मैं बिल्कुल भी मोटिवेशनल राइटर नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम सर्चिंग समथिंग कि मैंने कुछ लिखा हो जो मैं आज सुना सकूँ। Okay. सो स्टार्ट कर रही हूँ, और ये भी बता दे रही हूँ कि मैं भी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ। अच्छा क्या मतलब, बस लिखती हूँ, जो दिल में आता है लिख देती हूँ, तो और मोटिवेशन तो नहीं लिखती हूँ। आई नो दिस इज समथिंग आई शुड नॉट। और हाँ,
You should be proud on yourself, क्योंकि लिखना हर किसी के बस की भी बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपने शब्दों को ऐसे फिरोना कि एक सुंदर माला बन जाए, एक सेंटेंस बन जाए खूबसूरत सा, तो that's a talent. So the title of my poem is तो क्या हुआ? Is I'm audible? Yes, you're audible. Okay, so तो क्या हुआ अगर मजहब अलग है, दिल तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर मजहब अलग है, दिल तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे यहाँ अल्लाह और मेरे यहाँ ईश्वर, इबादत तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे यहाँ मस्जिद और मेरे यहाँ मंदिर, मन्नत तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे यहाँ जिस्म और मेरे यहाँ बदन, रूह तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे यहाँ निकाह और मेरे यहाँ विवाह, मतलब तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे यहाँ बेगम और मेरे यहाँ पत्नी, मोहब्बत तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे यहाँ इश्क और मेरे यहाँ प्यार, एहसास तो एक है ना? तो क्या हुआ अगर तुम मुस्लिम और मैं हिंदू, ईश्वर तो एक है ना? थैंक यू गाइस। Wow. Yeah, it was beautiful. Beautiful. Okay, Kamya is again with us. Yeah. Okay. Blown Thank away you, dear. from your performance. And yep, thank here you is our and all the resort. best. Akya, you all can see her. Oh my god. Yeah, the organizer. Oh, what your heart says. Thank you so much guys. Yes, and please. Thank you for coming. It's my pleasure to hear all of you. Thank you guys, and I'm leaving now. Hope you all are going to rock, and tomorrow Without we will taking meet much again. time, right. So just before we close, I would love to say a few lines, क्योंकि आख्या को सुनने के बाद मैंने ये सुना था कभी, तो वही शेयर करने जा रही हूँ कि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और हम सब मिलकर रहेंगे तो मजबूत हिंदुस्तान होगा। क्या बात है आफरीन जी। बहुत बढ़िया आफरीन जी। आफरी कर दिया सब कुछ। Yes, thank you. Thank you. That was a dab. Yeah. सीख रही हूँ मैं अपने बच्चों से, मेरे स्टूडेंट्स से, वो ये सब बहुत करते हैं ना, तो I'm just learning all of this. मैंने कहा था ना वो गैप महसूस होता है, तो उसको कभी कभी ऐसे सप्रेस करना पड़ता है। They must love you for that. No, I would have loved to have a teacher like that. जो शक्तिमान की बात। Thank you so much. That's a compliment. Yeah. I would take it as a compliment. Thank you so much, and thank you all of you for being here. Founder is also here. Founder साहब, आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आप बच के जा नहीं सकते। चैतन्य, are you here? Yes, दी। अखिल, चलो फंस गए बेटा। चैतन्य, Yes, now it's your turn. हम आपको सुनना चाहेंगे। इससे पहले कि इस मीटिंग को हम एंड करें, चैतन्य, प्लीज say a few words. या मीटिंग एंड कर ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, जस्ट अ मोमेंट, चैतन्य भी हमारे यंग रॉकस्टार ही हैं। जेईसी पब्लिकेशन के पीछे चैतन्य ही हैं, और चैतन्य, मुझे खुशी होगी अगर आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकें, अदरवाइज बाकी लोग आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढ ही सकते हैं। ठीक है, ओके चैतन्य, over to you. आज आप मीटिंग एंड कर दो, मैं भी कुछ सुनाने काबिल तो नहीं हूँ। अच्छा, but try at least few words, few lines, क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं आज, उन्होंने भी बड़ा मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा। और मैंने अभी तक कुछ सोचा भी नहीं है। राइट काम्या? एक्चुअली सोचा भी नहीं है। जब तक मैं और काम्या ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, चैतन्य तुम्हारे पास 10 सेकेंड है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जाने तो नहीं देंगे हम लोग। या बिल्कुल, ओपन माइक, वीडियो ओपन माइक। मैं एक सुना सकता हूँ, रिसेंटली लिखा था कुछ। सर योर वीडियो इज ऑफ। हाँ तो ऑफ ही रहने दो प्लीज उसे। सो
ऑफ प्लीज ऑफ ही रहने दो। let it be. Yes, Chaitanya, please go ahead. आता तो नहीं है मुझे प्रेजेंट करने, बट कोशिश करूँगा प्रेजेंट करने का, ठीक है ना? Okay. ज़िंदगी में ज़िंदगी के तरह तरह के सवाल हैं, मसाल ये है कि मुझे ज़िंदगी से मलाल है। एक ही ज़िंदगी है, उसमें भी गम ज़्यादा है और खुशियाँ कम है, खुदा यह कैसे कमाल है। प्यार और प्यार भरी ज़िंदगी में वफाई और बेवफाई भी तो कभी हिज्र तो कभी विशाल है। भरोसा करके किए जाते हैं रिश्ते, यहाँ रिश्ते निभाने ज़्यादा भरोसा करना मुहाल है। दिस वॉज दी एक्चुअली ये लिखा था, बट मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, पहली बार मैंने बोला है एक्चुअली। नहीं, वेल स्पोकन, वेल स्पोकन। और इससे पहले कि हम माइक ड्रॉप करें एंड गूगल मीट को एंड करें ताकि हम कल दोबारा मिल सकें, मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी एंड उसके बाद काम्या इट विल बी ओवर टू यू, right? And before I say those lines, I would thank everybody over here, whosoever is present right now, and especially the guests who performed, very well. बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के। तो लाइनें कुछ इस तरह से हैं, शायद आप कनेक्ट कर पाएँ, शायद आप महसूस कर पाएँ। और उसके बाद मनोरंजन जी ने लिखा था कि वो काम्या के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर काम्या will give the hearts out in the chat box, तो मनोरंजन जी आपको मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके, तो लाइनें कुछ ऐसे हैं कि खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब जिंदगी में कौन हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। और कुछ ऐसा ही रिश्ता आप सबके साथ है हमारा, JEC कम्युनिटी एंड अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक दूसरे को पढ़ पाते हैं, उनके ख्याल पढ़ पाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। So that's my call, guys. And now over to Kamya. So guys, first of all I want to thank each of one कि आपने अपना precious time निकाला हम लोगों के लिए, and definitely आपने अपने words से हमें बहुत different emotions दिए, happy emotions, sad emotions, and I hope सब इमोशंस में कलेक्ट कर सकूँ, एंड आई कैन प्रे फॉर यू एवरीवन कि सब अपनी सफरिंग से डेफिनेटली हट जाए और एक स्माइल हमेशा रखे। एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, लाइक व्हेनेवर यू मीट समवन, जस्ट पुट अ स्माइल ऑन एवरीबॉडी फेस सो दैट यू कैन बी आल्सो हैप्पी एंड द अदर पर्सन कैन आल्सो बी हैप्पी। एंड मनोरंजन जी, मैं अब आपसे बोलना चाहूँगी, आप मेरे लिए कुछ बोलना चाहते थे, आप बोल सकते हैं। थैंक यू रजनी मैम। Thank you. Yes, ma'am. Awesome. Thank you, Aprajita. You were so sweet. Thank you so much, all of you. Really, you made our day. Everything was monotonous. We were doing our work, and then all of a sudden, the notification popped up that would you like to take participation in open mic? And I was like, yes, definitely. So thank you so much, all the admins. Yes, ma'am. Kamya, ma'am. This is for you. Thank you, Shishma ma'am. Thank you, Anya. Oh, this is yes, over. मनोरंजन जी, और क्या कहना चाहते हैं आप काम्या जी के लिए? जी बोलिए। Not over. कुछ कहना चाहते हैं? After your words only. काम्या मैम को देख रहे हैं। काहे देख रहे हैं ऐसे? ये अभी ख्याल आया, काम्या मैम को नहीं देख सकते हैं। सुकून भरी चेहरों से ऐसे एक नहीं रहे हैं मैम, मतलब हम समझ रहे हैं आप तारीफ में कहना चाह रहे हैं कुछ। तो भाभी जी घर पे जहाँ उसी की तरह आपका आवाज लग रहा है। राइट, यस मनोरंजन जी, प्लीज गो अहेड, आपकी तारीफ के लिए कान तरस रहे हैं। आपके लिए है कि नहीं, अब नहीं बोलेंगे। बोलिए कहिए। काहे नहीं बोलिएगा, आप तो एकदम अरे आपने क्या कर दिया ये? बोलेंगे, चलिए आप इस तरह से करिएगा तो फिर हम भूल जाएंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, हम शांत रहेंगे। हाँ जी, फरमाइए।
मैम जिस तरह से अभी आप जितने अच्छे से सुन रहे थे और जिस तरह से आपके चेहरे और हाथ का एक्सप्रेशन जिस तरह से चल रहा था, मेरे माइंड में आया कि चेहरों पे हाथ रख कर जो सुनती हो, सॉरी मतलब तुम बोल रही हूँ, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। चेहरों पर हाथ रखकर जो तुम सुनती हो बड़ी अच्छी लगती हो। खुदा ने चेहरे पर खुदा ने मासूम चेहरे पर जो दिल दिया है, ये मासूम चेहरा बड़े ही सच्ची लगती है। शुक्रिया मनोरंजन, बहुत खूब बहुत खूब। आज एक काम करिएगा मनोरंजन जी, आप अपने पेरेंट्स को, अगर आप दूर हैं तो कॉल कीजिएगा और अगर पास है तो जाके कहिएगा जरूर, पर यू नो गिविंग यू दिस ब्यूटीफुल नेम, क्योंकि मैं मानती हूँ नाम जो है ना वो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है और वो बखूबी हम देख सकते हैं आपके नाम में, राइट? तो धीरे धीरे लोग गायब होना शुरू हो चुके हैं। आज तो मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट किया था और काफी मैम आप मैं बताने तो आपकी जी 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 आई थिंक नेटवर्क इशू शुरू हो चुके हैं। सुनाना चाहता हूँ, आवाज डिले हो रही है शायद। और अगर इजाजत हो तो। हाँ जी बोलिए। ओके मैम। तो मैम ओवर किया जाए फिर। हाँ जी, आई गेस सभी को नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, पीपल आर डिसअपियर्ड आल्सो, बट जो लोग यहाँ पर हैं इस वक्त, चाहे वो एडमिन से हों या पार्टिसिपेंट हो या हमारे गेस्ट हों, रियली थैंकफुल कि आप सब ने इतना वक्त निकाला और इस शाम को हैपनिंग बनाया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। Okay, goodbye all of you. Bye bye, take care everyone. Lots of love. Bye Goodbye, Aksha, ma'am. bye Prajita. Okay, bye bye. Bye Prajita, bye Aksha, bye everyone. You all also take care. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.